Hey everyone, welcome to my podcast Suchitra's Life with me, Suchitra. And I'm back with another podcast episode for you all out there. I just wanted to know if you guys ever thought that balloons could change anybody's life. I guess not. Balloons are not really taken seriously. We love playing with them, we love looking at them getting burst. But I managed to talk to Milan, who ended up changing the lives of underprivileged kids with the help of balloons. To know how he did it, let's dive into the conversation. Hi, Milan. Welcome to my podcast. How are you doing today? I'm doing just awesome. The great day starts with a great networking. Mm-hmm. Great. So, I wanted to know a bit about yourself, your background, where are you from, and what do you do in general? So basically, I'm a social entrepreneur. So I invest in companies, and my forte is I invest in such companies where we can create and curate the jobs for people. And our family businesses, we are merchant bankers. So we list companies in stock exchange. Mm-hmm. So that's what we curate. And there are multiple companies where we have invested as a family fund. That's my background. And as an entrepreneur, we have curated certain companies where we can help the society. Mm, that's great. So you will be like a go-to person for all or anyone's business. And Lovely. Yeah. Anybody who is require anything and everything for their businesses, be it the funds, be it the networking, be it the mentoring. तो जो उनको रिक्वायरमेंट है कहीं पे बिकॉज हर बिजनेस के अंदर में कुछ ना कहीं किसी ना किसी की गाड़ी अटकती है. yeah. किसी जमाने में मेरी भी अटकी थी तो मुझे लोगों ने हेल्प किया. तो आज मैं कुछ मुकाम पे पहुंचा हूँ. तो अभी थोड़ा सा थॉट प्रोसेस यही है कि जब आपको मदद मिली थी तो आपने उसको यूटिलाइज किया, चैनलाइज किया. Yeah. सेम चीज अभी दूसरे जो लोग हैं बिजनेस में, कितना भी बड़े से बड़ा बिजनेस मैन और छोटे से छोटा बिजनेस ओनर, दिक्कत सबको आती है. किसी ना किसी को कुछ ना कुछ टाइप की मदद चाहिए ही होती है. सो यू शुड ऑलवेज कीप योर आई ओपन टू हेल्प द बिजनेसेस बिकॉज इफ बिजनेसेस ग्रोज तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोज, कैश फंड ग्रोज, इकोनॉमी ग्रोज, एवरीथिंग रन्स ओवर अ बिजनेस. Mm-hmm. So it's like pay it forward. Whatever you receive, you pay it forward. डेफिनेटली. Mm-hmm. So tell me about were you always inclined towards business or you have other interests as well, or were you just driven towards business? Like your education, education background, people think that they want to be something and they'll end up doing तो something else. basically I'm a college dropout. Mm-hmm. So yeah, business was one thing because my background is from a मारवाड़ी community. तो हमारे घर में पहले ही सिखा दिया जाता है कि पढ़ोगे तो भी धंधा ही करना है, नहीं पढ़ोगे तो भी बिजनेस पे बैठना है. तो आइडिया वो बोलते हैं ना कि एक फ्री हैंड और फ्रीडम था ही कि हाँ करना तो बिजनेस ही है. तो दैट वाज अ थॉट प्रोसेस. एंड खाली बिजनेस बिजनेस नहीं, आई बिलीव इन द थियरी ऑफ लिविंग योर लाइफ. So I am active in sports also. I'm adventurous. I'm a traveler. I've traveled like almost 80 plus countries on my Harley and my Bullet. Oh, Be it any corner of India, शायद ही ऐसा होगा जहाँ पे मैं बुलेट लेकर के नहीं गया हुआ हूँ. तो आई बिलीव इन फॉर्मली लिविंग योर लाइफ. खाली पैसा बनाने का मजा नहीं है, पैसा बना करके उसको खर्च करने में जो मजा है उससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं है. true, true. So, how did you come up with an idea like balloon wala? So this is very interesting. Lovely. That is one of the closest to my heart business. I do not call it a business, but I will call it as a social experiment. Mm-hmm. तो एज अ सोसाइटी हमारा सबसे बड़ा फेलियर क्या है ना कि हम लोग जॉब्स अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के लोगों के लिए कुछ क्यूरेट
और या फिर क्रिएट कर ही नहीं पाए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक गरीब बच्चा सड़क पे भीख मांग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या सोचोगे कि अच्छा मेरे घर पे आकर के झाड़ू पोछा कर देना, या फिर मेरी गाड़ी साफ कर देना, या फिर चाय की टपरी पे आप उसको बोलोगे कि चलो चाय बेचने का या धोने का, कपड़े धोने का काम कर देना। बट द जेन्युइन आंसर है कि आप उससे अगर आप जाके पूछोगे तो उसको ये काम करना है, द आंसर इज नो। नहीं धोना है उसको आपके कपड़े, नहीं धोना है आपको उसको जूठे बर्तन। उसका नहीं, मैं ये मानता हूँ कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिसको करने की इच्छा होती है वो ये काम कर लेगा, बट नॉट एवरीबडी। जैसे सबको को जर्नलिस्ट नहीं बनना है। अगर मैं बोलूँ कि नहीं पूरी इंडिया में सब जर्नलिस्ट बनेंगे, तो वो बोलेगा अरे नहीं यार हमको नहीं बनना है। तो वो बोलते हैं जैसे 5 उंगलियां होती है, वो अलग अलग साइज की होती है, तो अलग अलग प्रोफेशंस भी लोगों के माइंडसेट के अंदर में होते हैं। क्या हम ऐसा कुछ प्रोफेशन क्यूरेट कर सकते हैं या फिर नया कुछ लेकर के आ सकते हैं जिसके अंदर में इनको ऐसा लगे कि वो काम नहीं कर रहे हैं? तो हमने उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू किया और उनको समझाया कि तुम काम पे नहीं जा रहे हो। तो आई यूज टू गेट बलून्स फॉर देम एंड आई यूज टू टेल देम कि नाउ प्ले, जस्ट प्ले विद बलून्स, यू हैव टू इन्फ्लेट इट एंड बर्स्ट इट एंड यू हैव टू प्ले। खेलो जितना खेल सकते हो। तो उनको ये लगता था कि हम तो बलून से खेल रहे हैं। एंड किड्स किड्स ऑफ 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, इवन मैं आपको भी आपके सामने 10-12 बलून रख दूं तो आप उससे खेलने लग जाओगे। तो बलून्स हैव नो एज, नो बार्स, no color discrimination to have the experience of fun. So with that ideation we started this. तो हम लोग बस्तियों में झुग्गी झोपड़े में जाते थे और बच्चों को बलून से खेलने का मौका देते थे। और धीरे धीरे हम लोगों ने उनको सिखाना शुरू किया कि बलून का बिजनेस कैसा है ना, बलून फुलाना बड़ा बात नहीं है। आपको भी बलून में अगर 10 बलून दे दूंगा तो आप बैठे बैठे फुला दोगे या कुछ ना कुछ इन्फ्लेट कर लोगे। We get those machines to inflate them actually. Yes, you get machines to inflate, but how much to inflate ना, it's a big challenge. तो हमने उनका वो मैथ्स उनको सिखाया एंड धीरे 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 धीरे, और प्लस हम लोगों ने उनको बलून से क्रिएटिव चीजें बनाना सिखाया। दे कैन मेक पेट्स आउट ऑफ बलून, दे कैन मेक एनिमल्स आउट ऑफ बलून, दे कैन मेक डिफरेंट क्रिएचर्स आउट ऑफ बलून्स। तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था एंड देन वी टाई अप विथ इवेंट प्लानर्स कि यार मैंने किसी भी शहर के अंदर में, इंडिया के अंदर में, देयर इज अ नो क्यूरेटेड एजेंसी फॉर बलून डेकोरेशन। अच्छा फ्लोरिस्ट मिल जाएगा, अच्छा इवेंट प्लानर मिल जाएगा, अच्छा ड्राई क्लीनर मिल जाएगा, पर अच्छा बलून डेकोरेशन वाला नहीं मिल पाता है। तो वी थॉट कि ऐसा कुछ बनाते हैं एंड टाई अप किया इवेंट प्लानर से। बहुत सारे फ्ली मार्केट्स के अंदर में वी डिड कि हमको एक छोटा सा स्टॉल दे दो, हमारे बच्चे आएंगे और बलून से क्रिएटिव चीजें बनाएंगे। तो पीपल लाइक द आइडिया एंड जब उन्होंने देखा कि ये इतने छोटे हुनरबाज बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत सिंपल सी थिंग है कि हर एक चीज के पीछे अगर आपकी नीयत साफ होती है ना, तो वो चीजें बड़ी बनने में जरा भी देरी नहीं होती है। तो वी स्टार्टेड विद दैट थॉट प्रोसेस और आइडिया था कि इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो धीरे धीरे हमने काम शुरू किया और फिर ये इवेंट प्लानर्स ने इनको हायर करना शुरू किया एंड नाउ वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट टीम नॉट इन अहमदाबाद बट प्रोबेबली इन इंडिया, जो खाली बलून डेकोरेशन का क्यूरेटेड काम करती है। एंड इन बच्चों ने छोटे छोटे घरों में नहीं, छोटे छोटे घरों में तो मैंने कितने घरों में काम किया हुआ है। दे हैव डन द डेकोर फॉर ईशा अंबानीज वेलकम बेबी वेलकम डेकोर, दे हैव डन गौतम अदानी 64th बर्थडे का बलून डेकोर, 62nd बर्थडे का बलून डेकोर, रतन टाटाज बर्थडे डेकोर। सो दीज आर द बिग नेम्स जहाँ पे ये बच्चों ने अपने हुनर दिखाए हैं। Wow. So, how do you like choose these kids for balloon work? Initially, I used to go to streets and I used to tell them कि ऐसा ऐसा काम है, ऐसा ऐसा हम लोग तुमको सिखाएंगे। और रादर देन, क्योंकि ये बच्चों क्या मेजरली ड्रग पैडलर बन गए थे, तो उसमें बड़ा दिक्कत ये आता था कि एक तो लाइफ हमेशा खतरे में रहती थी। पुलिस के यहाँ पे पकड़े जाते थे तो बाल सुधार गृह और ये सब के अंदर में फिर उनको मार खाना पड़ रहा था। तो हमने समझाया कि यार पैसे के लिए, और उसमें से भी पैसा नहीं मिलता था इनको, वही 7-8 हजार रुपए मिल जाते थे। तो हमने बोला कि यार इससे ज्यादा पैसा अगर तुमको मिले और इज्जत भी मिले, तो वो एक्सपीरियंस क्या होता है ना, बोलना बहुत आसान होता है कि हम तुमको इज्जत देंगे, पर वो इज्जत दिलवाना वो टफ काम होता है। तो आई यूज टू टेक देम इन कार, आई यूज टू टेक देम टू 5 स्टार होटल कि ये देखो यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। वी यूज टू हैव फूड टुगेदर। तो
वो जब एक्सपीरियंस करते थे कि हाँ यार ऐसा लाइफ मिल सकता है, कार में बैठने का सपना, कि हाँ कार में बैठ करके तुमको जाने को मिलेगा काम करने के लिए, तो वो सब एक्सपीरियंस जब उनको कराया तो वो जो करंट लाइफ जी रहे थे वो उनको बदतर लगने लगी कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से जर्नी उनकी शुरू हुई और अब माता का आशीर्वाद है कि आई डोंट हैव टू रन बिहाइंड देम, दे ओनली स्पीक टू देयर कम्युनिटी पीपल। तो जैसे कभी कोई मीडिया हाउस इंटरव्यू करता है तो आई टेल देम कि यार मेरा फोटो मत देना, इन बच्चों का फोटो देना। तो दे बिकम सेलिब्रिटी, दे शो द पिक्चर टू देयर कम्युनिटी पीपल कि ओ हमारा पेपर में फोटो आया, आर्टिकल आया, ये आया। तो उनके पेरेंट्स दे स्टार्ट फीलिंग प्राउड कि हाँ हमारा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है। आज इंडिया में कैसा है कि जब तक मीडिया जस्टिफाई ना कर देना कि ये हुनरबाज है या फिर या तो ये अच्छा है या ये खराब है, मीडिया ने लिख दिया, वो दिन मजाक मजाक में मैं बोलूंगा ना खाता ना बही, मीडिया बोल दे वो सही। तो आपको जमीन पे भी गिरा सकती है और आपको चांद पे भी भेज सकती है, इतना पावर होता है मीडिया के पास में। तो वो पेपर का कटिंग दिखा दिखा करके बच्चे में एकदम जोश आ जाता है कि यार हमारा पेपर में आर्टिकल आ गया है, हम कुछ बड़े बन गए हैं। एंड देयर पेरेंट्स स्टार्टेड गेटिंग कॉन्फिडेंस कि नहीं यहाँ चीज में इनको इनके सेंटर पे भेजा जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीज की शुरुआत हुई और एक अच्छे मुकाम पे पहुंची। That's really inspiring. So what is the ideal age group? Like, do you have a criteria कि this is the ideal तो age group or? सो एवरेज एज शुड बी अबव 16। 16 से ऊपर का कोई भी ज्वाइन कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज गवर्नमेंट का लॉ है कि एनीबडी हु इज अबव 12 ना वो ही काम कर सकता है, Yeah. और वो भी नॉट मोर देन 3 to 4 आवर्स। तो हमारा काम यही होता है, एक बेसिक डेकोर करने के अंदर में 3 से 4 घंटे में काम खत्म हो जाता है। Mm-hmm. So, like for Balloon Wala, so how, like when a child approaches and you train them and he does the decor and all, so is he like eligible for a stipend from day one itself, or how does it work? यस, फ्रॉम द डे वन दे आर एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड। सो ट्रेनिंग के टाइम पे हम लोग उनको सैलरी देते हैं 6,000 रुपीज का, Mm-hmm. जो उनको लगभग 3 महीने के लिए उनका सैलरी रहता है। और एक बार वो काम करना शुरू कर देते हैं फिर डिपेंड करता है कि कैसा लेवल पे वो काम कर रहे हैं। तो फ्रॉम 9,000 to 12,000 रुपीज उनका हाइक हम लोग वर्कआउट करके दे देते हैं। That's great. So are these the kids uh, who say that they're not interested in like normal college education, or it's just someone who had just deviated from everything? Like, सो दे आर डेविएटेड, सो वी टेल देम कि अगर उनको पढ़ाई करना है तो वो उनका इंटरेस्ट है। सी मेरे लिए बहुत फ्रैंक लोगों का ये बहुत बड़ा क्रिटिक रहता है कि अरे यार तुम उनको पढ़ाते क्यों नहीं हो। हाँ. सो द आंसर इज वेरी सिंपल कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता। अगर उस बच्चे को पढ़ने की इच्छा होगी तो मैं उनको नॉलेज जरूर दूंगा कि यार देखो तुमको पढ़ने की इच्छा है तो ये स्कूल है, या फिर आई हैव अ फ्रेंड एंड टाई अप विद एनजीओ, दे आस्क देम। बट क्या होता है ना, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर। जब उनको पैसा, क्योंकि उनके घर में एजुकेशन की उस टाइम पे जरूरत नहीं है, उस टाइम पे उनके घर में रोटी की जरूरत है और वो काम करने से आएगी। तो वो ये सोचता है कि यार मैं पढ़ने जाऊंगा तो मेरे को काम वाम का तो पैसा नहीं मिल पाएगा। दैट प्रोसेस वो फोकस करता है कि यार जितने देरी मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करूँ उससे अच्छा तो मैं 4 घंटे 5 घंटे कहीं और काम कर लूंगा। Yeah. तो लगभग यहाँ 12,000 तो मिल ही रहे हैं, 2-3 और एक्स्ट्रा काम कर लूंगा तो और 3-4 हजार एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 15-16 हजार रुपए मेरी मेहनत हो जाएगी। माई किड्स आर गेटिंग लाइक ऑलमोस्ट 20-25 थाउजेंड अ मंथ, कुछ बच्चे। फिर उनको ये लगता है कि यार पढ़ाई लिखाई करके भी तो इससे ज्यादा तो मेरा नहीं हो पाएगा। Yeah. तो हुनर होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में भी इट ओपन अ गेटवे टू वर्क। तो यहाँ तो आप काम कर ही रहे हैं ना, तो आई टोल्ड है कि सब आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे या सब नहीं पढ़ेंगे। वी आर अ कंट्री ऑफ 150 करोड़ पीपल, तो कुछ ना कुछ नए आयाम भी ढूंढने पड़ेंगे। Exactly. So, Milan, did it take time for you to convince the parents? How receptive were the parents? इनिशियली नहीं थे, उनको ऐसा था कि ये वापस कोई एनजीओ वाला आएगा मेरे बच्चों को लेके जाएगा, उसके नाम पे डोनेशन मांगेगा और ये सब करेगा, क्योंकि लोग बहुत कतराते हैं द मोमेंट यू से एनजीओ ना। Yeah. तो उनको भी डर लगता है कि यार ये हमारे बच्चों को बेच ना दे। Oh God. तो उनको मैंने समझाया कि मैं तुम्हारे बच्चों को बेचने नहीं लेके आया हूँ, तुमको हुनर दूंगा और शाम को
तुम्हारे, और सबसे अच्छी बात क्या करी, हम उनको उनके कम्युनिटी से बाहर नहीं लेके जाते थे। जहाँ पे उनका घर है वहीं पे हम लोग कोई एक जगह रेंट पे ले लेते थे और उनको बोलते थे कि यहीं पे तुम्हारे बच्चे आएंगे, उनको यहीं पे खेलना है, यहीं पे सीखना है, इससे कहीं बाहर जाना ही नहीं है। जिस दिन काम आ जाएगा उस दिन से ये इनको बाहर लेकर के जाएंगे। तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो गया कि हाँ यार, हमारे बच्चे कहीं बाहर नहीं जा रहे, हमारे आंखों के सामने ही है। Oh, great. So when did Balloon Wala begin actually? The ideation. How did you like It get started, the the idea to concept connect? started in 2015. So I was in Cebu. तो सीबू में कैसा है, वहाँ पे जैसे गुजरात में या फिर इंडिया के अंदर में बॉलीवुड डांस पे कैसे लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, वैसे वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो बलून डेकोरेशन इज मस्ट। Oh. तो जिनके यहाँ पे मैं रेंट पे रहता था वो मुझे मतलब फैसिनेशन था, तो मुझे सिखाया, मैं भी सीखा। और फिर जब इंडिया में आया तो आई वॉज गुड इनफ टू लर्न द थिंग्स। तो मेरे को ऐसा था कि यार मैं तो कभी भी ये काम नहीं करूंगा, पर क्या मैं ये हुनर किसी और को दे सकता हूँ। मेरे को बहुत ऑड लगता था जब ये बच्चे आते थे कार में भीख मीख मांगने के लिए या फिर नटोरियस एक्टिविटीज ये वो। तो इट क्लिक्ड एन आइडिया कि क्यों ना 2-3 बच्चों के साथ में शुरुआत करूं। वो बोलते हैं ना कि वंस यू हैव अ गुड थॉट प्रोसेस, शुरुआत में थोड़ा लाइक एक डिसीजन लेने में, फॉर्म डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप उस पे मक्कम रहते हो तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो थोड़ा टफ था, बट अभी नाउ विद गॉड ग्रेस थिंग्स आर टर्न्ड अप लाइक एनीथिंग एंड इट इज गिविंग ग्रेट नंबर। Yeah, I mean, it's so interesting that you connected balloon and with the kids. Like, none of us would get that idea, to be very honest. Whatever we learn, we just forget and we go about with our lives. But it's amazing how you connected a simple thing like, balloon decoration and how you've connected, like, you've targeted kids who would, you know, not be taken seriously, to be honest. मेक सेंस। तो वही होता है, और इतना मजा आता है ना ये बच्चे, उनको लगता ही नहीं कि वो काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। एंड चेरी ऑन द टॉप बोले एज अ सोसाइटी, सबसे बड़ा हेडेक हो गया कि मेरे को बार बार इनके लिए फंड जनरेशन और ये सब करने की दिक्कत नहीं होती है। तो अभी दे मेक ग्रेट मनी आउट ऑफ इट। मैं तो मतलब इवेंट वाले वाले जो बंदे होते हैं उनसे कमर्शियल्स भी हंसते हंसते डिसाइड करता हूँ कि यार देखो 80 पैसे का बलून आता है, हवा फ्री की होती है, ये भरने के बाद में आपको 7 से 8 रुपए पर बलून का चार्ज करते हैं। So we make good profit out of it, but the good thing is that whatever profit we make it, we use the entire profit for the welfare of these kids. तो मेरे को बार बार वो डोनेशन मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। they do good work, they do basic decoration every day, they do good number of work, और काम करते हैं और अपना हाजिरी जो होता है जिसको बोलते हैं डेली वेजेस, वो लेकर के चले जाते हैं। दे आर हैप्पी, पीपल आर हैप्पी बिकॉज आर costs are very pocket friendly. So basic decor. Thinking, how did you raise funds and all, and then I was like, I was thinking to ask you this, the funds initial stage में, but then. तो इनिशियली फंड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि बलून चाहिए। बलून के 80 पैसे का बलून आता है, वो बोलते ना 5,000 बलून भी लेकर के आऊंगा तो मुश्किल से 4,000 रुपए लगेंगे, इतना तो मैं खुद ही दे सकता हूँ। एंड फ्रॉम दैट लर्निंग अगर छोटा सा भी बेसिक काम करने भी जाते हैं बलून का तो मुश्किल से 400-500 रुपए का उनका खर्चा होता है और 2,500-3,000 रुपए बच्चे लेकर के आ जाते हैं। बेसिक छोटा डेकोर करते हैं, उसमें 250-300 बलून यूज होते हैं, उसके लिए वो लोग खुशी खुशी 2,500-3,000 रुपए तो आराम से उनको मिल जाते हैं। तो इट्स ए हाई मार्जिन प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड इसका कोई भी रिसेशन नहीं है, बिकॉज इंडिया के अंदर में बच्चे पैदा होने कभी बंद नहीं होंगे। एंड नाउअडेज पीपल आर सो क्यूरेटेड विथ सेलिब्रेशन। उनके अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, हाफ बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, फर्स्ट टाइम उनके बच्चे ने खाना खाया है तो उसको सेलिब्रेट करना है, उसकी मौसी आई है तो उसको सेलिब्रेट करना है, अगर कोई बच्चा घर पे आ रहा है तो उसको सेलिब्रेट करना। एवरीथिंग एंड एनीथिंग। समबडी वांट टू प्रपोज देयर लव्ड वंस तो उसके लिए 75th बर्थडे है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैरिज फंक्शन है, हर चीज के अंदर में बलून का डेकोर उनको चाहिए होता है। एंड वी क्यूरेट दैट डेकोर एंड दैट्स हाउ वी मेक मनी एंड वी आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली। सबसे अच्छी बात ऐसा नहीं है कि
बच्चों के नाम पे ऐसा बोले कि कभी कभी क्या होता है ना, एनजीओ से लेने में भी बहुत दिक्कत हो जाती है सर्विसेज कि बिकॉज वी आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, 5 रुपए की चीज आप हमसे 500 में खरीदो। तो मेरा थॉट प्रोसेस वो नहीं है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे अच्छे रेट के अंदर में आप चीज दो, अच्छी सर्विस दो, बिजनेस खुद चल करके आपके पास में घर पे आएगा। रादर देन टेलिंग कि नहीं ये अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के बच्चे हैं, आप इनको काम दो और मार्केट के अंदर में डेकोरेशन 5,000 रुपए में हो रहा है, पर इन बच्चों को आप 7,000 दो। सॉरी बॉस, कोई नहीं करवाएगा मेरे से ये डेकोरेशन, और मेरे को वैसे सेल भी नहीं करना है। आई टेल इट कि भले अंडर प्रिविलेज है, हम काम करने के लिए आए हैं, मेरे को इमोशन में बिजनेस नहीं चाहिए। मार्केट में 5,000 में डेकोरेशन हो रहा है, मैं 4,500 में करके दूंगा, पर मेरी सर्विसेज और क्वालिटी 5,000 वाले से ज्यादा अच्छी होगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेरे को वो पैसा मेरे घर पे नहीं लेके जाना है, मेरे को सारा ही पैसा इन बच्चों को ही देना है। तो आई टोल्ड यू ना, जब आपकी नीयत साफ होती है तो चीजें अपने आप काम करती है। Okay, that's really, really inspiring. So initially, how many kids did you train, and now how many kids do you have with? I started with 3 kids. Mm-hmm. ट्रेनिंग अगर मैं बोलूँ तो आई हैव ट्रेन मोर देन 400 किड्स Mm-hmm. जो आते हैं चले जाते हैं हमारे यहाँ पे काम करते हैं। एंड इन हाउस अगर मैं बोलूँ तो आई हैव अ टीम ऑफ लाइक 60+ किड्स जो रेगुलरली हमारे यहाँ काम करते हैं। That's amazing. So you were the one who initially trained them. Yes. Now do you have, some senior kids training the junior kids? Yes, these kids are only the trainer. They only teach their teammates. Great, great. So some random skill that you've picked somewhere long ago has kind of like, These kids teach professionals. मतलब अच्छे अच्छे जो इवेंट प्लानर्स है, दे सेंड देयर टीम्स के प्लीज हमारी टीममेट्स को थोड़ा सा सिखा दो। wow. बिकॉज क्या होता है कि इट इज नॉट वाइबल फॉर देम टू डू द प्रोजेक्ट व्हेन देयर बजट इज नॉट देयर। सो आवर टीम ट्रैवल्स डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट कंट्रीज फॉर द डेकोरेशन। बट सपोज चेन्नई में कोई इवेंट करना है बट उसको नॉलेज नहीं है, तो दे टेल कि यार हम हमारी टीम के बंदों को भेज देंगे, इनको आप ट्रेन कर दो ना अपने बच्चों को बता करके। एंड वी डू क्यूरेटेड वर्कशॉप्स। सो दीज किड्स गो टू स्कूल एंड बच्चों को किस तरीके से बलून से, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट होता है ना, वैसे ये बच्चे स्कूल्स में जाकर के बच्चों को बलून क्राफ्टिंग सिखाते हैं। सो किड्स टीचिंग किड्स एंड दे फील वेरी प्राउड कि यार लोग हमको बोलते थे तुम स्कूल नहीं जा पाए, तो कुछ बच्चे तो बड़े मजाक मजाक में बोलते हैं कि बॉस हम स्कूल नहीं गए, पर हम टीचरों से कम भी नहीं है। yeah, that's इन सम स्कूल्स टीचर्स आल्सो टेल देम ना कि हमको भी सिखाओ ना। yeah. तो कुछ ऐसे बड़े, तो हमारे यहाँ वर्क कल्चर कैसा है, बहुत मस्ती वाला है। वी आर नॉट लाइक के अरे नहीं काम कर रहा है ये वो, बहुत एंजॉय करना है। हमारी टैगलाइन भी बड़ी प्यारी है, सबकी खुशियों का रखवाला बलून वाला। wow. तो सोसाइटी की खुश हो जाती है कि हाँ गरीब बच्चे जो भीख मांग रहे थे उनको काम मिल गया, बच्चे खुश हो जाते हैं कि उनको सुकून और अच्छा काम मिल गया। मैं खुश हो जाता हूँ कि हाँ सबके घरों के अंदर में डेकोर एक और अच्छा डेकोर कर रहे होते। एंड इफ यू विल सी द डेकोर ना, आई विल शेयर द पिक्चर। आप मेरे को बोलोगे मिलन तुम झूठ बोल रहे हो, ये काम ये बच्चों ने नहीं किया हुआ है। यू आर शोइंग मी द वर्क ऑफ मे बी सिंगापुर या दुबई या यूएस के अंदर में किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने ये किया हुआ है और तुम उनके पिक्चर्स मेरे को दिखा रहे हो। इतना प्रोफेशनल काम करते हैं ये, इतना प्रोफेशनल। That's really, really amazing. So, right now you're like Balloonwala is only in Ahmedabad, right? It is in Ahmedabad only. I would love to replicate this model in different cities, but we do projects pan India. We travel different places. बड़े projects होते हैं जहाँ पे लगभग 20,000 25,000 बलून का काम करना हो, तो we travel मुंबई, we travel अहमदाबाद के अलावा नियर बाई जो सिटीज है जैसे राजकोट हो गया, सूरत हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इंदौर हो गया। We travel Chennai also. We travel Jaipur and all places. तो बजट होना चाहिए, मेरे बच्चे तो कहीं भी जाने के लिए रेडी है। That's great. I think maybe if any of our listeners would like to replicate and would like to, reach out to you, can you Definitely. tell us like where can anyone reach out to you on Insta, be it Insta or any? तो बलून वाला ऑफिशियल हमारा बलून ट्रक वाला का पेज है। Sure. So I can share my this helpline number also, Sure. which is 99 786 08
081. I again repeat, 99 786 08081. So that is our phone number. Our email address is Indian Balloon Wala. INDIAN. Indian BALLOON WALA. Indian Balloon Wala @ gmail.com. So people can reach us on these two platforms. Sure. And yeah, we would love to replicate this model in different cities, क्योंकि अंडर प्रिविलेज फैमिलीज के बच्चे सिर्फ अहमदाबाद में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है, और सेलिब्रेशंस खाली अहमदाबाद में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होता है. True. तो ये चीज इजीली क्यूरेट की जा सकती है. Sure. I hope, like, at least through this podcast, anyone who's listening out there who would want to, reach out to you, I hope they will. I'll also tag all the details in the description of my podcast as well. And like, finally, like, what's your, like, future plan for Balloonwala? Like, So future plans are to expand apart from that, anything? Only balloons? Are you gonna stick to only balloons, or is something gonna come up? I mean, just curious. one thing is very sure, we are a private limited company, so we are bidding for IPO in next 2 years. Wow. We will be the first listed company of only and only balloon decoration in India. Wow. That is first thing is for sure. The other thing is for sure, which is we will only be doing the balloon decor, because we always tell, जब आप पूरा इवेंट करने लग जाते हो ना, तो you become a threat to event planners कि अरे यार ये भी पूरा इवेंट करने लग गया. My ideation from the first day was very clear. I am not your competitor. I am your companion. आपका बलून डेकोरेशन इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, टेक माई सर्विसेज, आई विल बी योर पार्टनर ओनली, आई विल बी योर चैनल पार्टनर, वी विल वर्क टुगेदर. मैं आपके काम को और अच्छा क्यूरेट करने की कोशिश करूंगा विथ योर हेल्प. सो वी टाई अप विद इवेंट प्लानर्स एंड दैट्स बिकम वेरी इजी, बिकॉज मुझे सेल्स नहीं आता, इवेंट प्लानर को सेल्स आता है, मुझे बलून भी आता है समझ में, इंडिया में कौन से कलर का बलून कहाँ पड़ा हुआ है मुझे नॉलेज है उसकी, इवेंट प्लानर को उस चीज की नॉलेज नहीं है. तो रादर देन सबको इवेंट प्लानर बने, इससे अच्छा छोटी छोटी चीजों के अंदर में बिजनेसेस आराम से बना सकते हैं, तो उस पर फोकस करते हैं. Yeah, I think maybe to pitch your services to event planner, you can use this tagline like, "I'm not your competitor, I'm your companion." आई से द सेम थिंग, आई ऑलवेज से कि मैं आपका कंपटीशन में हूँ ही नहीं, मैं आपका कंपेनियन हूँ, मैं तो आपका वेंडर हूँ. That's so amazing. Thank you so much, Milan, for taking your time out and doing this. Anytime. In the middle of something, but I really, really appreciate, and I really wish all the very best for Balloonwala. And I really appreciate that you cover such positive stories and you spread so much of positivity in the society. Society badly needs this. Society badly needs people like you who spread such great positivity through the words, through the stories, through the conversations. I wish keep doing it, and many more great stories you cover. That's a warm wishes from me and from the entire team of Balloonwala. That's so lovely, Milan. Thank you so much. Sure. Okay. Have an amazing Bye. day ahead. Yeah. Bye-bye. Yeah.